Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about phytoremediation, which is going to be about how plants clean our environment, or which kind of plants what kind of plants clean our environment. So before proceeding towards the video, I just want to request to you all to please like, comment, share and subscribe to my channel. So let's get started. Let's understand and explore, one of the most fascinating and eco-friendly solutions that biotechnology offers us, that is phytoremediation. So to start with, did you know that certain plants have the capability and potential to actually clean up pollution from soil and water? So these are, nature's very own environmental engineers. I mean, so-called. So let's find out how these green, spontaneous superheroes help our planet, in being pollution free. So what is phytoremediation? Phytoremediation, if I start with what is phytoremediation and how do we explain it in the simple terms? So the term comes from phyto, which means plant, and remediation means to correct or to improve or to remove something which is bad or which is pollution, right? So that is phytoremediation in simpler terms. Now अगर simple words में हम phytoremediation का एक collective definition बनाएं, so it is phytoremediation means कि वो plants का use करना जो कि हमारे environment को क्लीन कर सकें, यानी कि pollution को, dirt को, जो भी ऐसे substances हैं which are not required by our ecosystem or us, उसको हम remove कर सकें, right? So it's a clean, green and sustainable alternative to traditional chemical or mechanical cleanup, right? So plants and natural biological processes or methods को use करके how we can clean up toxic soils or water bodies बिना nature को harm किए हुए, that is going to be the today's topic. Okay. So now what is the science behind it? How do we explain the science behind it? How do plants are capable of something like that? How do plants clean up the dirt or pollution of the soils and water? See, let's understand how this process works. Plants के जो roots होते हैं वो sponges जैसा act करते हैं, right? Plants के जो roots होते हैं जहाँ से plants originate होते हैं वो sponges जैसा act करते हैं. Now what do you mean? What do I mean by sponges? Sponges means होता है कि वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट उसी के साथ साथ वो पॉल्यूटेंट्स जैसे कि हेवी मेटल्स हुए, पेस्टिसाइड्स हुए, ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स हुए, उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर. जब ये सब चीज़ें प्लांट्स के रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो ये कंटामिनेंट्स को प्लांट्स या तो ब्रोक डाउन कर देता है बाय प्लांट एंजाइम्स और स्टोर कर लेता है टिश्यूज में, लीव्स के टिश्यूज में, स्टेम्स के टिश्यूज में, या फिर स्टेबलाइज कर देता है इन द सॉइल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्प्रेडिंग. तो सॉइल के अंदर उसको बरी कर देता है ताकि वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रेड ना हो. तो इंटरेस्टिंगली माइक्रोब्स जो हमारे अराउंड रहते हैं, लिविंग अराउंड दी प्लांट रूट्स, जो ऐसे माइक्रोब्स जो प्लांट रूट्स के अराउंड रहते हैं, जैसे हम राइजोस्फीयर बोलते हैं, वो भी टॉक्सिक कंपाउंड्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, इन वन और द अदर वे. सो इट्स अ टीम वर्क बिटवीन प्लांट एंड माइक्रोब्स. प्लांट और माइक्रोब्स के बीच में ये एक टीम वर्क होता है. Now phytoremediation के टाइप्स क्या क्या होते हैं? See, it is not just one process. एक ही प्रोसेस नहीं है phytoremediation. बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस, मेथड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरीके से डिपेंडिंग ऑन हाउ द प्लांट इंटरैक्ट्स विद द पॉल्यूटेंट. ओके, सो 5 मेन टाइप्स हम आज डिस्कस करेंगे. देयर आर 5 मेन टाइप्स. सो वन इज फाइटो एक्सट्रैक्शन. व्हेन आई से फाइटो एक्सट्रैक्शन, इट मीन्स ऐसे प्लांट्स जो कि मेटल्स को एब्जॉर्ब करते हैं अपने टिश्यूज के अंदर, उनको हम बोलते हैं फाइटो एक्सट्रैक्शन. फाइटोस्टेबलाइजेशन. फाइटोस्टेबलाइजेशन वो प्लांट्स होते हैं जो पॉल्यूटेंट्स को लॉक कर देते हैं इन द ग्राउंड एंड इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्प्रेडिंग. ओके, फाइटोस्टेबलाइजेशन मीन्स वो प्लांट्स जो कि पॉल्यूटेंट्स को लॉक कर देते हैं इन द ग्राउंड और उनको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम स्प्रेडिंग, उसको हम बोलते हैं फाइटोस्टेबलाइजेशन, जहाँ पे इमोबिलाइजेशन हो रहा है सॉइल पे.
सो प्लांट्स ने क्या किया, पॉल्यूटेंट्स को लॉक कर दिया इन द ग्राउंड एंड दे प्रिवेंट देम फ्रॉम स्प्रेडिंग, उसको स्प्रेड नहीं होने देते, उसको फर्दर वो स्प्रेड नहीं होता, वो प्लांट जो है वो पॉल्यूटेंट्स को लॉक कर देता है कहीं ना कहीं सॉइल के अंदर, स्प्रेड नहीं हो पाता. दैट इज फाइटोस्टेबलाइजेशन. यहाँ पे इमोबिलाइजेशन हो रहा है इन द सॉइल. इमोबिलाइजेशन मीन्स जहाँ पे मोबाइल होने की कैपेसिटी, जहाँ पर स्प्रेड होने की कैपेसिटी खत्म हो जाए, दैट इज इमोबिलाइजेशन. फाइटो डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे प्लांट्स जो कि प्लांट एंजाइम्स को यूज करके पॉल्यूटेंट्स को तोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं बिकॉज डिग्रेड हो रहे हैं ना, और कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिग्रेड हो रहे हैं प्लांट एंजाइम्स की वजह से, उसे हम बोलते हैं फाइटो डिग्रेडेशन. ठीक है. फाइटो वोलेटिलाइजेशन. वोलेटिलाइजेशन मीन्स ऐसे प्लांट्स जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं और रिलीज करते हैं टॉक्सिन्स को एयर के अंदर सेफर फॉर्म में. सेफर फॉर्म यानी कि जो यूजेबल फॉर्म है बाय द ऑर्गेनिजम्स और बाय द एनवायरमेंटल फॉर्म्स, तो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्जन के बाद उसको रिलीज करते हैं, तो वो फाइटोवोलेटिलाइजेशन होता है. देन कम्स द राइजोफिल्ट्रेशन. राइजोफिल्ट्रेशन में प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो वाटर से डायरेक्टली पॉल्यूटेंट्स को क्लीन कर देते हैं, वाटर को साफ कर देते हैं फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन और फॉर द इंडस्ट्रीज कंजम्पशन और एनी काइंड ऑफ कंजम्पशन that has human touch. So now let's look at each one more closely and let's understand each one in detail. Okay. So phyto extraction. जब हम फाइटो एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो ऐसे प्लांट्स के बारे में हम बात करते हैं जो कि मेटल मैग्नेट्स होते हैं, जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर हेवी मेटल्स को, विच आर नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, राइट. तो टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि लीड हुआ, कैडमियम हुआ, जिंक हुआ, प्लांट्स क्या करते हैं, इनको अपनी रूट्स में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको टिश्यूज, लीव्स के टिश्यूज में या स्टेम्स के टिश्यूज में स्टोर कर लेते हैं. जब प्लांट्स ये सारे मेटल्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं अपने अंदर, तो ये जो मेटल्स हैं, हेवी मेटल्स हैं, इनको हार्वेस्ट किया जाता है और सेफली उसको डिस्पोज करा जा सकता है. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक स्टोरेज का मेथड हो गया. वंस दैट ऑल ऑफ द बैड न्यूट्रिएंट्स, all of the bad toxins are absorbed somewhere, we know that the bad toxins are there, we can extract that out and we can remove it from the environment. So that is how our environment is keeping safe, right? So कुछ एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स हैं फाइटो एक्सट्रैक्शन के, जैसे कि इंडियन मस्टर्ड का जो प्लांट होता है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में या साइंटिफिक टर्म्स में ब्रासिका जिनसिया बोलते हैं. So that is one plant which is involved in phytoextraction. फिर उसके बाद सनफ्लावर आता है. सनफ्लावर इज हेलियंथस अनस. तो हेलियंथस अनस जो होता है वो, so they are both known for their amazing ability to pull heavy metals out of the ground. Okay. Then comes the next topic, which is for phytostabilization. Now what is phytostabilization? See here, plants don't remove the contaminants, but they instead trap or immobilize them in the soil. ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है, जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो रेन से वॉश अवे होके स्प्रेड नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उनकी स्प्रेडिंग खत्म हो जाती है, ग्राउंड वाटर में वो एंटर कर जाते हैं. एंड इट इज़ अ ग्रेट मेथड फॉर एरियाज लाइक माइन टेलिंग्स एंड इंडस्ट्रियल लैंड्स जो होते हैं, जहाँ पर है ना रेन के साथ वॉश होने में या पानी के साथ वॉश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. सो वो चीज़ को कहीं ना कहीं प्लांट्स एलिमिनेट करते हैं. जैसे कि प्लांट्स वेटिवर ग्रास है, पोपलार ट्रीज है, ये सब इस तरीके के प्लांट्स हैं जो फाइटोस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो दे ऑल्सो एक्ट लाइक अ ग्रीन बैरियर ओवर अ टॉक्सिक लैंड. ओके. सो इंडस्ट्रियल लैंड में यू विल सी दीज प्लांट्स आर मेनली ग्रो. उसके बाद हम आते हैं फाइटो डिग्रेडेशन पे. See, phytodegradation, I would say it is probably the coolest mechanism. Why? Because plants जो होते हैं वो harmful chemicals को break down कर देते हैं, harmful chemicals को तोड़ देते हैं. So it is, over for them. सो नेचुरल एंजाइम्स को यूज करके, प्लांट एंजाइम्स को यूज करके प्लांट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन, डिग्रेड कर देते हैं. जैसे कि हर्बिसाइड्स हुए, सॉल्वेंट्स हुए, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स हुए, ये इनको ऐसे हार्मलेस प्रोडक्ट्स में तोड़ देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, विच इज अगेन रीयूजेबल बाय द इन्वायरमेंट, विच इज रीयूजेबल बाय द इंडस्ट्रीज, ह्यूमंस. सो उस तरीके से ये प्लांट्स एक्ट करते हैं. पोपलार ट्रीज, विलोज, ये वेल नोन एग्जांपल्स हैं इस टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए, फाइटोडिग्रेडेशन एबिलिटीज जिनके अंदर होती है. सो दे डोंट जस्ट ट्रैप द पॉल्यूटेंट्स, दे डिस्ट्रॉय देम कंप्लीटली. ओके.
Then come phytovolatilization. So phytovolatilization थोड़ा सा स्ट्रेंज साउंड कर रहा होगा, बट ये एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो कंटामिनेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं उनके रूट्स के थ्रू, एंड उसको कन्वर्ट कर देते हैं गैशियस फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में, गैशियस यूजेबल फॉर्म्स में, जो कि लीव्स से रिलीज हो जाती है वापस एनवायरनमेंट में. जैसे कि सर्टेन प्लांट्स जो होते हैं वो मर्करी और सेलेनियम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उनको एटमॉस्फेयर में लीस्ट टॉक्सिक गैसेस की तरह, लेस टॉक्सिक गैसेस की तरह रिलीज कर देते हैं. तो ये एक नेचर का खुद का तरीका है, नेचर, इट्स नेचर ओन वे to of turning pollutants into vapor that disperses safely, right? Then comes the last part, which is rhizofiltration. So rhizofiltration का मतलब होता है वाटर को क्लीन करना. ना वाटर को कैसे क्लीन कर सकते हैं? So प्लांट रूट्स जो होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं या एब्जॉर्ब कर लेती हैं पॉल्यूटेंट्स को कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेस से, और उसको वो इफेक्टिवली यूज, मतलब इफेक्टिवली दिस प्रोसेस इज वेरी इफेक्टिव अगर आपको हेवी मेटल्स को रिमूव करना है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को रिमूव करना है. एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट्स इज सनफ्लावर्स, इंडियन मस्टर्ड, आपका वाटर हायासिंथ. ये सारे पॉपुलर चॉइसेस हैं इस मेथड के लिए. इनको आप पॉन्ड्स में ग्रो कर सकते हो, टैंक्स में ग्रो कर सकते हो, जो कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस और वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में काम आते हैं. Now, what are the plants that are used in phytoremediation? So let's look at some of the real examples, okay? So Indian mustard, as I told you, ये lead को remove करता है और cadmium को remove करता है soil के अंदर से. Vetiver grass जो है वो zinc को stabilize करता है, arsenic को stabilize करता है soil के अंदर. Sunflowers जो हैं, they extract uranium and other heavy metals from water. पोपलार ट्रीज जो होते हैं वो पेस्टिसाइड्स को डिग्रेड करते हैं, ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स को डिग्रेड करते हैं. सो एवरी plant has its own unique specific role depending on the type of contamination and depending on what kind of atmosphere it is living in. Okay, so see, some environments are industry oriented, like some areas are industrial areas and some are like very normal people oriented areas, household oriented areas. So it depends what kind of plant and what kind of area, what kind of environment, what kind of environmental scenario, what kind of contaminants are there. So it depends on all of that factors also, and it depends on what kind of plants, because each plant has its specific role in dealing with the type of contaminants it has in the surroundings. So these are some of the examples. But these are not the only examples. There are other examples as well. I have included the major ones. Okay. Now, what are the advantages of this technique? See, it has some big advantages. Environment friendly है सबसे पहली चीज, because plants remove कर रहे हैं, so that it is going to be environment friendly and it is very environment friendly. Cost effective method है, आपको जब just एक plant लगाना है, which is very cost effective manner. And visually pleasing है because you are planting trees, so it is going to make the environment green and happy and wealthier, right? So heavy machinery की कोई need नहीं है, chemicals की कोई need नहीं है. You are just growing a simple kind of plant. You just have to put the nutrients out there for the plant to have its growth in a normal manner. So large contaminated areas को cover कर सकता है, soil fertility को फिर से restore कर सकता है, air quality को improve कर सकता है in a manner. So all of these are benefits of this technique. Plus it's a natural method जो कि harmony के साथ एक harmony बनाकर deal करता है with the ecosystem. So it's biotechnology and ecology oriented. उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे लिमिटेशंस. लिमिटेशंस में क्या होता है? सी बट लाइक ऑल टेक्नोलॉजीज इट हैज इट्स लिमिटेशंस एज वेल. फाइटोरेमिडिएशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है. प्लांट्स को टाइम लगता है टू ग्रो एंड टू एब्जॉर्ब कंटामिनेंट्स, फिर वो एब्जॉर्ब करने के बाद टू डील विद दैट कंटामिनेंट्स, राइट. सो प्लांट्स को उसके लिए टाइम लगता है, बट इट वर्क्स बेस्ट फॉर शैलो और मॉडरेटली कंटामिनेटेड एरियाज, जो बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड नहीं है. उन एरियाज के लिए इट वर्क्स द बेस्ट. अदर देन दैट डीप पोल्यूशन के लिए भी इट इज समवेयर नॉट वेरी compatible method, but definitely it is going to work
And once the plants have absorbed toxins, फिर वो खुद hazardous हो जाते हैं. So उसको dispose करना वो बहुत ज़रूरी है, right? So still the benefits often outweigh the challenges, but then there are challenges which needs to be looked at. What are the real world applications of this technique? See, phytoremediation has already been used in real life cleanup projects worldwide, right? सनफ्लावर्स को यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में पानी से, और फिर नियर द चर्नोबिल न्यूक्लियर साइट. सो ये ऑलरेडी एक चीज़ चल रही है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग मेटल कंटेमिनेटेड सॉइल्स, माइंस के आसपास, या रिहेबिलिटेटिंग ऑयल स्पिन जोन्स होते हैं, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए. इन सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी ये प्लांट्स काम आ रहे हैं. And these examples show how biotechnology can help us fix what pollution has broken using nature itself. Okay. Now, what are the future prospects of this technique? See, future looks very exciting, very promising for this technique. Scientists जो हैं वो genetically modifying plants बनाने के try कर रहे हैं, जो कि pollutant absorbing capabilities potential को बढ़ाएगा. So इसके लिए हम बोल सकते हैं super plants बनाने के try कर रहे हैं. Nanotechnology is also being combined with photoremediation ताकि efficiency को improve करा जा सके. And who knows, maybe one day we'll use these techniques even in space to recycle waste in extraterrestrial habitats, right? So the green revolution is truly just beginning, okay? So thank you so much for watching. That's it for today's video. I hope this video helped you in some way. So we just learned how plants can literally clean our planet from soil and water to even radioactive waste as well. So if you enjoyed this video, please do like, comment, share and subscribe to my channel. We will meet in the next video. If you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comment section. We will meet in the next video. Till then, bye bye, take care. Thank you.